So today I will start unit 2. In this unit, first of all, we will discuss about the solution of Legendre differential equation. So actually in this unit we will discuss Legendre differential equation, solution of Legendre differential equation, and properties of solution of Legendre differential equation, Bessel differential equation, and Sturm-Liouville's problem. Okay, so now start the topic of Legendre differential equation. Actually, in our physical, mathematical physics and engineering, many times we will come across a second order linear differential equation, and solution of these linear differential equation gives rise a special type of functions, and that functions are called special function. So Legendre differential equation is one of these equation whose solution is very important. And actually when we are solving the Laplace equation in spherical coordinate, then we will come across with this Legendre equation. So now Legendre differential equation is a second order linear differential equation of the type 1 minus x square y double dash minus 2x y dash plus n plus 1 y is 0. Say that it is equation number 1. Okay, where this n is a real constant, but many practical problem which we come across when we are solving any real problem. So value of this n in that case is generally uh, positive integer. Okay, they are positive integer. Many times, most of the application we have to take this n as a positive integer. Okay, so you can see here x is equal to plus minus 1 is singular point for this differential equation, or the singular point for this differential equation. Differential equation 1. So domain for this differential equation will be, ये जो हमारी equation है इसका domain क्या होगा? It must be x lies between -1 to 1, क्योंकि x is equal to plus minus 1 पर ये singular हो जाता है. That's why the domain will be this time. Okay, if we are choosing any point between this interval, say that it is the interval. एक second.
Okay. X plus minus 1 is its singular point for differential equation 1. So if we are choosing any point between this interval minus 1 to 1. So if we choose any point between this interval, that point must be ordinary point for our differential equation. So for simplicity, if we are choosing here x is equal to 0, x is equal to 0, it must be ordinary point for differential equation 1. So if we will find the solution of this differential equation about this point x is equal to 0 with the help of power series method, so that solution must be converged in interval of radius. किस interval of radius में converge करेगा बता सकते हैं? If we are finding a solution for this differential equation 1 about the point x is equal to 0, which is the ordinary point, if we are finding the solution with the help of power series method, so obtained solution must be converged in an interval of convergence of radius. क्या होगा radius? -1 to 1. -1 to radius तो पॉजिटिव ही रहता है ना? 1. Yes, ma'am. +1. 1 होगा. 1. So actually the radius of convergent at a particular point किसी सीरीज सोल्यूशन के लिए, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाता है? द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस सिंगुलैरिटी डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन. ये तो यहाँ पे ये जो 0 है इसकी स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस है वो सिंगुलैरिटी, इनके बीच में कहीं और सिंगुलैरिटी नहीं है, केवल सिंगुलैरिटी है -1 पर और 1 पर. So smallest distance between the point and the singular point is called the radius of convergence. तो यहाँ smallest distance ये हो गई हमारी. So r must be 1. So interval of convergence must be mod x is less than 1. So whatever with the solution we will obtain here about this point x is equal to 0 must be convergent in this interval of convergence. अब कोई जरूरी नहीं है कि हम 0 ही चूज करें इसको निकालने के लिए. ये तो हमने सिंपलिसिटी के लिए ले लिया कि दोनों ही तरफ इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए. फॉर सपोज इफ यू आर चूजिंग अ पॉइंट हियर, से दैट इट इज -a, it is a point -a between -1 and 0, and this must be our ordinary point for differential equation 1. So for this point x is equal to -a, what if we want to find the solution about this point, so this solution must be converged in interval of convergence of radius. क्या होगा इसके लिए? radius of convergence क्या होगा अगर ये point -a है? x minus a. X minus a. This is 1 a है, ये है ना, ये हम नोट डिनोट कर रहे हैं, ये दिस इज -a. सो यू कैन सी दैट स्मॉलेस्ट, ये भी सिंगुलैरिटी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की और ये भी है, बट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है वो -1 के साथ है. तो रेडियस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट, तो इसके बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1 minus a. 1 minus a. 1 - a. दिस विल बी द सिंगुलर पॉइंट. और अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? एक तो एक साइड तो ये डिस्टेंस आ गई, अब सेम डिस्टेंस 1 - a इस साइड भी होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी कि जो हमारा जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस लेनी है. तो इधर एक ऐसा इंटरवल इस साइड पर जो वैल्यू होगी उस पॉइंट तक हम इसका कहेंगे कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी. इंटरवल फाइनल लिखने के लिए वी हैव टू राइट हियर, जैसे यहाँ पे -1 to 1 लिखा है, इस केस में अगर हम -a के अबाउट निकाल रहे हैं
तो इस साइड तो हो जाएगा 1 माइनस ए, इस साइड पे क्या होगा, ये डिस्टेंस इस साइड पे देखोगे तो इक्वल डिस्टेंस इस साइड पर, बताइएगा कितना आ रहा है। ठीक है, तो वी कैन चूज एनी पॉइंट बिटवीन -1 to 1 that must be the ordinary point for this differential equation, and our solution is convergent for the interval mod x is less than 1. Okay, now start with to find the solution of this differential equation. Because x is equal to 0 is ordinary point. मैम हाँ, ये a क्या है एक्चुअली? a is any point between -1 to 1 minus a. ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट्स चूज कर सकते हैं, बिकॉज केवल जो इसकी सिंगुलैरिटी है वो -1 और 1 है। तो इस इंटरवल के बीच में कोई भी अगर हम पॉइंट चूज करें, दैट मस्ट बी ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। उस पॉइंट के अबाउट हम निकाल सकते हैं इसका सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज मेथड। ओके, तो मैम जिस पॉइंट के अबाउट हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसके हिसाब से रेडियस चेंज होती जाएगी। हाँ, उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके मैम। पर 0 हमारे पास सिंपल पॉइंट है, तो इसके अबाउट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैम वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस 1 माइनस ए से 1 तक नहीं होगा, क्योंकि मैम पूरे इंटरवल में कन्वर्ज नहीं कर नहीं, जाएगी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं ना, बोथ साइड इक्वल लेंथ यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, बोथ साइड हम इक्वल लेंथ करेंगे और ये पॉइंट सेंटर पे होगा, इसीलिए इसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, हालांकि कन्वर्ज इधर भी करेगा, लेकिन इसको लिखते यही। ओके, सो we are going to power series method. So solution in this case must be, let y is equal to summation n, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, या इसी को चेंज कर देते हैं, n की जगह पे यहाँ पे अल्फा लिख लेते हैं। एक सेकेंड, Excuse me, ma'am. यस यस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है सेकंड केस में x इक्वल टू माइनस ए पे, मैं वो कितना है? क्या बोल रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मैम सेकंड केस में मैम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस x इक्वल टू माइनस है, जो ऑर्डिनरी पॉइंट है उसके केस में क्या है, 1 माइनस ए टू। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कितना है? मैम वो मैम पूछ रहा हूँ मैं 1 माइनस ए लेस देन x लेस देन, देखो 1 माइनस ए इस साइड हो गया, इसमें कितना होगा, माइनस ए में यही डिस्टेंस ऐड कर लीजिए, राइट हैंड साइड पे जाएंगे डिस्टेंस ऐड हो जाती है, तो 1 माइनस ए हो जाएगा। तो मैम 1 माइनस 2 है। हाँ, 1 माइनस 2a, दिस विल बी 1 माइनस 2a। मैम हाँ, ये आपने कैसे लिखा, एक बार फिर से बताएंगे? 1 माइनस ए कैसे लिखा? ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास माइनस ए है, कोई भी रियल लाइन पे ही जोड़ लो ना, ये है माइनस ए पॉइंट, ये है -1, तो यही डिस्टेंस आपकी स्मॉलेस्ट है, क्योंकि ये सिंगुलैरिटी तो इससे ज्यादा डिस्टेंस पे है। हमें क्या चूज करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट। तो इसकी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे जो सिंगुलर पॉइंट है वो -1 है, तो -1 है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या आएगा, आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इधर जाना है आपको, तो माइनस ए में करेंगे ना, तो मैम x -1 से वेराई करेगा ना मैम, x -1 से 1 - 2 है। यस मैम। पॉजिटिव डिस्टेंस हम हमारे पास ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इस साइड ये पॉइंट कितना होगा, ये डिस्टेंस बताओ। मैम लोएस्ट तो -1 जाएगा। ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 माइनस ए होगी या नहीं होगी? यस यस मैम, डिस्टेंस सही है ना, डिस्टेंस 1 माइनस ए होगी। Yes. अब इतनी ही डिस्टेंस आपको इस साइड करनी है, तो ये पॉइंट है माइनस ए, इस साइड जाते हो तो नंबर्स ऐड होते हैं ना, लेफ्ट साइड पे जा रहे हो। हाँ, तो
ये डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्टेंस माइनस ए में ऐड करोगे तभी उस पॉइंट पे पहुंचोगे जहां तक ये इंटरवल Yes. ऑफ कन्वर्जेंस जाएगा। वो पॉइंट बता रहा है, तो वो पॉइंट क्या होगा? माइनस ए minus में ऐड कर रहे हैं 1 माइनस ए, तो कितना होगा वो पॉइंट? 1 माइनस 2a होगा या नहीं? yes मैम। इसलिए ये पॉइंट ये होगा। तो इंटरवल में तो लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना, x लाइज बिटवीन। ओके, एक्चुअली x लाइज बिटवीन ये लिखने की बजाय यहाँ पे -1 लिखोगे। सॉरी, ये तो लेंथ हो गई ना। यस मैम, दिस वो शुड बी रेडियस माइनस। के लिए पॉजिटिव रह सकता है बट एक्स तो हाँ नेगेटिव हो सकता है। हाँ, x जो लाई करेगा वो ये इंटरवल ये होगा। x जो है हमारा इस इंटरवल में होगा जहां -a जो है सेंटर पे है। एक तरफ ये रेडियस है, दूसरी तरफ हमारे पास 1 माइनस 2a। ओके, मैम वो भी 1 माइनस 2 नहीं होगा एक्चुअली, वो क्यों भी नहीं होगा? 0 से उस तरफ है ना। 0 से थोड़ी ना, इसमें जो भी लेंथ है ये है हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। r जो है हमेशा पॉजिटिव है। आर r जो है, पॉजिटिव है, मैं r इज एक्स के लिए नहीं पॉजिटिव। कह रहा। तो अगर आपको इतनी लेंथ इधर इस साइड जाना है तो क्या -a में ही तो ऐड करोगे ये लेंथ? तो जो यस भी मैम, आएगा वो ये माइनस पॉइंट देगा। इट विल बी द पॉइंट। अब ये किधर पड़ रहा है वो डिपेंड करेगा a की वैल्यू पे। वो -1 + 2a हो जाएगा आई थिंक। नहीं, एक बार चेक कर लेना, ये यही आएगा 1 प्लस -2a। ओके, सो मैम ये जीरो के जरूरी कि अबाउट मैम हम यहाँ पे मैम ये जरूरी कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -r से आ रही हो, मतलब जैसे इस केस में इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मतलब ज्यादा हो सकता है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 माइनस ए। ये इस केस में यही आएगा क्योंकि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यही है। तो जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस लिखोगे उसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी होगा। ओके इंटरवल मैम। ऑफ कन्वर्जेंस लिखोगे, आप देखो रेडियस आपकी क्या आ रही है? 1 माइनस ए, एक्स माइनस 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 प्लस, इस पॉइंट -a के अबाउट लिख रहे हो तो ये है आपके पास। इसका मतलब क्या होता है? 1 माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस ए। यहां से देखिए -1 + a, इस साइड आएगा -a x, 1 माइनस a -1 x, 1 माइनस 2a है यही चीज की नहीं यस मैम। होगा? यस मैम। चलिए ठीक है। So let the solution for this case must be y is equal to summation n 0 to infinity, सॉरी n पहले से हमारे क्वेश्चन में है तो हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, m cm x to power n, where c naught is not equal to 0. It will be the solution. Now y dash is m 0 to infinity mcm x to power m minus 1. Y double dash is m 0 to infinity m minus 1 cm x to power m minus 2. This can also be write as m0 वाला टर्म 0 हो जाएगा, so it can be write as m1 infinity m cm x to power m minus 1, and this can also be write as m2 m minus 1 cm x m minus 2. Now, because we suppose that it must be the solution of differential equation 1 about the point x is equal to 0. So now, substituting all these value in equation number 1. Equation number 1 में substitute कर देते हैं. That was 1 minus x square y double dash means summation m2 to infinity m minus 1 cm x to power m minus 2 minus 2x summation m1 to infinity
cm x to power m minus 1 plus n plus 1 summation m 0 to infinity cm x m 0. Okay, now simplifying this expression, one into m2 0 c m and m minus 1 m minus 1 c m x to power m minus 2 minus x square. When minus x square will multiply with this term, we will give m from 2 to infinity m minus 1 c m x to power m. Okay, next was minus 2x, so 2 times summation m going from 1 to infinity m cm x m minus 1 into x cm plus n plus 1 y and 0 to infinity cm x to power m is equal to 0. Say that it is equation number 5. Now equating कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे हमें अच्छा पावर 3 सोल्यूशन है, तो इंडिशियल इक्वेशन की तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है. सो सिंपली वी हैव टू इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ जनरल पावर ऑफ x टू गेट द रेफरेंस रिलेशन. तो रेफरेंस रिलेशन मिलेगा हमें, किस में मिलेगा, एक m-2 वाले टर्म्स हैं, m वाले टर्म है. लेकिन ये समेशन स्टार्ट हो रहा है 2 से, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1. सो इसमें थोड़ा सा एक सबके समेशन को 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं. वी वांट टू राइट दिस समेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. तो यहाँ पर एट दिस पॉइंट दिस इज स्टार्टेड विद m इक्वल टू 2. तो यहाँ पे m को रिप्लेस कर रहे हैं बाई t plus 2 in the both case, and here m is replaced by l. लिख लेते हैं l plus 1. Okay, so this will give you t 0 to infinity t plus 2 t plus 2 t plus 1 c t plus 2 x to power t plus 2 t. Okay, minus t 0 to infinity t plus 2 t plus 1 c t plus 2 x to power t plus 2. Okay, next this will give you l from 0 to infinity l plus 1 c l plus 1 x to power l plus 1 n plus 1 0 to infinity c m x to power 0. Because this t and l are dummy variables, तो आप चाहे m भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता. अब बस हमने इसे क्या किया, शिफ्ट कर दिया हमने ओरिजिन को. So you can also write it in terms of m again. So we can write it m is equal to 0 to infinity m plus 2 m plus 1 c m plus 2 x to power m minus m 0 to infinity m plus 2 m plus 1 c m plus 2 x to power m plus 2. Okay, minus 2 summation m 0 to infinity m plus 1 c m plus 1 x to power m plus 1 n plus 1 summation m 0 to infinity c m x to power m 0. क्या करें, लोवेस्ट पावर क्या होगी इसमें,
m इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट टर्म मिलेगा। x2 ये देगा हमारा x, ये दो टर्म्स हमारे देंगे x का कोफिशिएंट, यानी C2 इन टर्म्स ऑफ C0। जल्दी से इस एक्सप्रेशन से बताइए C2 की वैल्यू क्या होगी। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x to power 0 to 0, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x to power 0 to 0, इक्वेट करिए। एक्सप्रेशन को देख के बताइए क्या आएगा। 2 into 1 C2 plus n plus 1 C0। माइनस ऑफ n इंटू n प्लस 1 C0 by 2। क्या आएगा? माइनस ऑफ n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 C0 by 2। हाँ C0 by 2। एक तो ये वैल्यू मिल गई। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x टू 0, x टू पावर 0 किया था, नेक्स्ट विल बी x0। देखते हैं क्या है, एक सेकेंड। x के लिए कहां से मिलेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 1, सो दिस विल गिव C3। और कहां से मिलेगा, यहाँ पे m इक्वल टू 1 देंगे तो ये तो C3 हो जाएगा। नो, corresponding to m equal to 0, this will give you x, and from here m equal to 1 we will get x। तो यहाँ पे m equal to 1, यहाँ पे m equal to 1, और इस वाले में हम क्या रखेंगे, m equal to 0। सो m equal to 1 रखेंगे तो 3 into 2 6 C3 6C3 plus n plus 1 C1 and minus 2 C1, 6 C3 minus 2 C1 plus n plus 1 C1। okay, 6 C3 minus 2 C1 n plus 1 C1। so next we will get C3 in terms of C1, 6 C3 2 minus n plus 1 C1, C3 will be 2n plus 1 C1 by 6, it will be C3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए कौन से टर्म हम जनरल टर्म इक्वेट करते हैं। C2 मिल गया हमें, C2 in terms of C0, then C3 in terms of C1 के अलग से कोई वैल्यू नहीं मिली। नाउ इफ वी आर इक्वेटिंग दिस पावर x to power m plus 2, x to power m plus 2 या x to power m बोलते हैं। if we are equating x to power m, तो x to power m means m plus 2 m plus 1 c m plus 2, 1 second, m plus 2 m plus 1 c m plus 2। okay, नेक्स्ट क्या है, माइनस m plus 2 m plus 1, x to power m means we should substitute here in place of m minus 2, m minus 2, यहाँ पे m minus 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो m और m minus 1 cm, m minus 1 cm।
आप इसको एक बार एक्सप्रेशन लिख लो, आप डायरेक्ट करो, हमें बार बार देखना पड़ रहा है पलट के वापस। यहां से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा m फ्रॉम m माइनस वन। दिस विल गिव यू माइनस टू m cm। ओके, माइनस टू m cm, माइनस टू m cm, minus 2 mcm. Okay, next is plus n plus 1 cm, plus n plus 1 cm is 0. Now from here you can write cm2 in terms of cm. So this will give you m plus 2, m plus 1, cm plus 2, and right hand side पे क्या जाएगा? Minus plus m minus 1 minus plus 2m, m minus 1 plus 2m, m plus m minus 1 minus 2m plus 2m minus n plus 1 cm, or cm plus 2 is m minus 1 plus 2m minus n plus 1 cm divided by m plus 2 m plus 1. इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सो व्हेन यू विल स्टार्ट विद m इक्वल टू 0, अच्छा ये डायरेक्ट भी यहाँ से रिलेशन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने वो दिन निकाले वो भी यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। सो दिस इज ट्रू फॉर m ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. So for m is equal to 0, this will give a relation between C2 and Cm. For m is equal to 1, C3 and C1 and so on. यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो C2 और C1 हम पहले ही निकाल चुके हैं, C3. Now we will find C4. So for C4 we have to substitute m is equal to 2. So m is equal to 2 means 2, 2 minus 1 plus 2 into 2, 4, n plus 1 divided by 4 into 3, C2, 6 n plus 1, 12 C2। और C2 की वैल्यू क्या निकल के आई थी इन टर्म्स ऑफ C नॉट? C2 क्या था? minus n plus 1 upon minus n plus 1 upon 2. Okay. So in place of this C2 we can write here minus n plus 1 upon 2. 2 means multiply C naught. हाँ, 24 C naught. ओके, और भी किसी तरह से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मुझे एक इसे पर्टिकुलर फॉर्म में बनाना होगा। 1 सेकेंड, मैंने कट कर दिया कुछ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि पैटर्न पहचानना है हमें। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, इसको क्या लिख सकते हैं? 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 into 4. So it can be write as factorial 4. 24 can be write as factorial 4. इसके जरा फैक्टर्स कीजिए। n into n plus 1 को रहने दीजिए, ये तो फैक्टर फॉर्म में है, इसको फैक्टर कीजिए। ये जो है 6 minus n plus 1 क्वाड्रेटिक है इन n, इनके दो फैक्टर्स निकाल लीजिए। इसको लिख सकते हैं n plus 1 minus 6 n square plus n 6
3 minus 2. So n plus 3, n minus 2. करेक्ट है ना? Yes, ma'am. n minus 2, n plus 1, n plus 3, c नॉट. सो C4 की वैल्यू जो हो गई है वो हो गई है n minus 2, n plus 1, n plus 3, c नॉट. प्लस 2. ओके, चलिए ये दो, एक ये बन गया. फिर यहीं से C5 निकाल लीजिए. What will be the C5 in that case? Okay, C5 is like that. 1 upon factorial 5, n minus 3, n minus 1, n plus 2, n plus 4, C1. Okay, C1. So even जो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं they are in terms of C naught and odd कोफिशिएंट सब C1 के टर्म्स में आ रहे हैं. और एक चीज देखिए यहाँ पे C2 वाले में माइनस आ रहा है, C4 में प्लस हो गया. तो एक अल्टरनेट साइन चल रहा है. नीचे फैक्टोरियल्स में वैल्यू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 आ रही है. ऊपर पैटर्न हमारा n और n plus 1, ऑड वाले और इवन वालों का देख रहे हैं. n plus 1 और यहाँ पे C4 में क्या आ रहा है? n plus 1, n plus 3, n minus 2. इस तरह के कुछ टर्म आ गए. चलिए पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम भी अपने टर्म्स को. C5 एक बार लिख लेते हैं यहाँ से. C5 n minus 3, n minus 1, n plus 2, n plus 4, 2 and 4, 1, 3, 2 and 4, C1. Okay. Factorial 5, n minus 3, n minus 1, n plus 2, n plus 4, C1. Okay. Now the solution will be yx summation m from 0 to infinity cmxm. When we are expanding this summation, this will give you c naught c1x, c2x square, c3x cube, c4x to power 4, c5x to power 5 plus so on. Substitute कर दीजिए. When you will substitute, you can see C2, C4 are in terms of C0, C3, C5 in terms of C1. Then we will collect the coefficient, the term which including C0, and in another bracket we will collect the term which including C1. तो हम पहले C0 वाले टर्म्स को एक साथ लिखते हैं. C0 कॉमन ले लेते हैं तो एक ये तो आ जाएगा प्लस 1 प्लस इस वाले टर्म्स में भी हमारा C0 आया था, तो ये इसकी वैल्यू आती थी हमारी माइनस n plus 1 फैक्टोरियल 2 C0 बाहर लिख चुके हम x स्क्वायर. C4 की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी? फैक्टोरियल 4 और क्या थी? n minus 2 n plus 1 n plus 3. Okay. n minus 2 n plus 1 n plus 3 C0 x to power 4 dash plus C1 x C3 में भी था लेकिन क्या था? माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3. C3 की वैल्यू क्या आ रही थी? यहाँ से देख लेते हैं. माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 n minus 1 n plus 2 n minus 1 n plus 2. Second. C1. Okay. X cube.
Next, factorial 5. अच्छा, factorial 5 तो यही लिखा हुआ है हमारा. n minus 3, n minus 1, n plus 2, n plus 4, x to power 5 and so on. So this, ये जो है, it will be our general solution. Why it is general solution? Because it is containing two arbitrary constant C0 and C1. And if a solution which contain the same number of arbitrary constant as the order of differential equation, then that solution must be general solution. तो ये solution जो हमारे पास है, say that it is expression number 6. It is the general solution for Legendre differential equation. ये Legendre differential equation हमारे पास इसका ये solution आ गया. Okay. And both the solution, एक solution को हम चाहते हैं इसको y0x बोल दें और इस वाले को y1x, या चाहे तो y1x और y2x. अभी तक हम y1x और y2x लिखते आए हैं. आपको चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y1x, जहां पे y0x एक सीरीज है और y1x अनदर सीरीज है. y0x क्या है हमारे पास, रिपीटेबली हम नहीं लिखेंगे, हम यहां से ही दिखा दे रहे हैं. y0x ये सीरीज है हमारी, ये जो c0 के साथ मल्टीप्लाई में. y1x वो सीरीज है विच इज मल्टीप्लाई विद c1x. So both are two Li solution. Why they will be Li solution? First thing, both the solution will be convergent in this interval of convergence, and they will be Li because the first series, you can see here, the first series is including only the even power of x. देखिए x square, x4, next will be x to power 6, and y1x, which is the another solution, it is including only odd power of x, like x to power 1, x to power 3, x to power 5, and next will be x to power 7. So आप देख लीजिए दोनों जो y0 and y1x both are the series solution which is convergent in interval mod x is equal to mod x is less than 1, and one is on including even power of x and another is including odd power of x. So obviously they are linearly independent solution for the Legendre differential equation. So both the solution are linearly independent solution. Okay, you can see here, एक बार हम y0 x लिखना ही पड़ेगा हमें यहाँ पे, वरना कंपेयर करने में दिक्कत होगी. It was 1 minus factorial 2 n plus 1. Okay. It was x square plus factorial 4, next was n minus 2 n plus 1 and n plus 3 x to power 4 and so on. And y1x is x minus factorial 3 x cube plus factorial 5 x5 n minus 1 n plus 2 and this is n minus 3 n minus 1 n minus 3 n minus 1 n plus 2 n plus 4. Okay, these two are linearly independent solution of our Legendre differential equation. Okay, so when, as earlier I told you, in general, in application, when we are faced with application problem and any real problem, then generally the value of this n is positive real number, positive integers. So here we are considering the solution for positive integers. So first of all, say that this n is 0. For suppose that value of this n is 0. So what will happen? When n will be 0, so y0 x will be 1. y0 x will be 1. And what will be the y1 x here?
it will be x minus माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, प्लस प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, एंड आगे भी टर्म्स रहेंगे, ये सारे टर्म्स हमारे जीरो नहीं होंगे. इसका मतलब इट विल बी अ इनफाइनाइट सीरीज. y1x in that case will be a infinite series for n is equal to 1. when n is 1, तो जब n 1 होगा तब देखिए क्या होगा, y not x when n is 1, it is 1 minus n is, we are substituting here n is equal to 1, so 1 into 2, it will be 2 upon factorial 2 means x square. Next term will be n is equal to 1 minus 2, 1 minus 2, 1, 2, 4, factorial 4, x4 and so on. ये सीरीज में भी, इसमें भी टर्म्स हमारे जीरो नहीं होंगे y नॉट के यहाँ. मैम वो -2 नहीं -1 आएगा. ये -2 है ना, ये वाला. बट n की वैल्यू हमने 1 ले ली. हाँ, n की वैल्यू 1 ली है ना. या इट शुड बी 1 minus 2 that is -1. Okay, हाँ, yes, it will be -1. Okay, yes, of course, it will be -1. Yeah. So this kind of value you will get, and y1x in that case is only x. y1x इस केस में x हो जाएगा. आगे के जितने भी टर्म है they are containing n-1, so ये सारे टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे. ओके, फिर n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करिए यहीं पर. n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तब देखिए क्या होगा, y नॉट x, It's will be 1 minus 2 into 3 divided by 2 factorial x. हाँ, 2 कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. ओके, फिर नेक्स्ट n इक्वल टू 2 यहाँ That's it. रखेंगे, जीरो हो जाएगा. सारे टर्म n इक्वल टू 2 रखेंगे, जीरो हो जाएगा. और आगे जो c6 होगा उसमें भी c4 वाले टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, तो n-2 वहां भी आएगा, तो वो सारे टर्म भी जीरो हो जाएंगे. तो ये केवल इतना आ गया, 1 minus 3x स्क्वायर. और y1x की अगर हम यहाँ पे बात करें तो y1x देखना, जब n इक्वल टू 2 रखोगे इट विल बी नॉट जीरो. n इक्वल टू 2 के लिए ये जीरो नहीं होगा. देख रहे हो जो माइनस में टर्म बन रहे हैं वो ऑड वाले बन रहे हैं, n-1, n-3, इस तरह के टर्म बन रहे हैं. तो ये हमें एक इनफाइनाइट सीरीज देगी. वी विल गेट अ इनफाइनाइट सीरीज. इसी तरह आप यहाँ से देखोगे इस पैटर्न को, तो जब हम n की वैल्यू नॉन जीरो पॉजिटिव इवन इंटीजर रख रहे हैं, तो y नॉट x जो है वो हमें एक, जैसे यहाँ पे ये पॉलिनोमियल दे रहा है, इसको 1 को बोलेंगे कांस्टेंट वैल्यू है, तो वी कैन कंसीडर इट एज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0. इसको पॉलिनोमियल डिग्री 0 कह सकते हैं. यहाँ पे देखिए y1x n इक्वल टू 1 रखने पे इसमें x आ रही है, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. y2x में जब n इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो y नॉट x पॉलिनोमियल दे रहा है 1 minus 3x स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा है. तो जब भी हम ये इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो दोनों में से एक सोल्यूशन y0 और y1 दो एलआई सोल्यूशन है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के. तो व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो आइदर ऑफ देम इज अ पॉलिनोमियल. या तो y0 जो है वो हमारा एक पॉलिनोमियल देता है, या y1x पॉलिनोमियल देता है, और जो दूसरा सोल्यूशन होता है वो एक इनफाइनाइट सीरीज हो जाता है. और वो भी एक पैटर्न है. देखिए जब जीरो ले रहे हैं आप तो y0 x जो है वो पॉलिनोमियल है, y1x एक इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सीरीज सोल्यूशन. फिर n इक्वल टू 1 लेते हैं तो y1 जो है वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन जाता है, y0 x वो हमें इनफाइनाइट सीरीज सोल्यूशन देता है. फिर n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग फिर से हमारे पास y0 x जो पहला वाला सोल्यूशन है वो एक पॉलिनोमियल सोल्यूशन देता है, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज देता है. तो यानी कि जब इवन वैल्यू आती हैं तो y0 x पॉलिनोमियल देता है और y1x इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है. और जब n ऑड वैल्यूज लेता है उस केस में ये y1x जो है वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाता है और ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देता है. इट मींस दैट कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव n की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, इन दैट केस जो हमारा वन ऑफ द सोल्यूशन है वो एक पॉलिनोमियल बन जाता है. ठीक है. एंड पॉलिनोमियल में भी देखिए यहाँ पे जब n 0 लेते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 0 आ रही है. यहाँ पे जब n इक्वल टू 1 लेते हैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है.
जब n इक्वल टू 2 लेते हैं तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यानी कि ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शो कर रहा है n, 0, 1 or 2. It means that when in the Legendre differential equation, when this n takes the value any positive integer, so it's out of its two Li solution, one solution will be a polynomial of degree n and other will be a infinite series. Okay, तो मेनली अभी इस बात को समझ लीजिए कि इसका एक सोल्यूशन, जब n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है उस केस में एक सोल्यूशन हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है और दूसरा हमारा इनफाइनाइट सीरीज होता है। और हमारे काम का जो डिस्कशन का फंक्शन मेन होगा वो होगा एक पॉलिनोमियल फंक्शन। अब उसके बारे में आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो मैम। ओके, नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे कि कैसे लेजेंडर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, कौन से सॉल्यूशन होते हैं जो लेजेंडर पॉलिनोमियल कहलाते हैं और उनका जनरल फॉर्मूला क्या होते हैं। ओके।